Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyatan हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत साधु संघ के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम पठन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से दूसरा स्कंद है, पहला अध्याय और श्लोक संख्या 12। तो हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो श्लोक दूसरे स्कंद का पहला अध्याय और श्लोक संख्या है 12। इस जो अध्याय का शीर्षक है द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। तो श्लोक इस प्रकार से है। किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हयनैर् इह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयस्यथा। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. What is the value of the prolonged life which is wasted, inexperienced by years in this world? Better a moment of full consciousness, because that gives one a start in searching after his supreme interest. Purport. Sukdev Goswami instructed Maharaj Parikshit about the importance of chanting of the holy names of the Lord by every progressive gentleman. In order to encourage the king, who had only 7 remaining days of life, Srila Sukdev Goswami asserted that there is no use in living hundreds of years without any knowledge of the problems of life. Better to live for a moment with full consciousness of the supreme interest to be fulfilled. The supreme interest of life is eternal, and with full knowledge and bliss, those who are bewildered by the external features of the material world and are engaged in the animal propensities of eat, drink, and be merry type of life are simply wasting their lives by the unseen passing away of valuable years. We should know in perfect consciousness that human life is bestowed upon the conditioned soul to achieve spiritual success, and the easiest possible procedure to attain this end is to chant the holy name of the Lord. In the previous verses, we have discussed this point to a certain extent, and we may further be enlightened on different types of offenses committed to the feet of the holy name. Srila Jiva Goswami Prabhu has quoted many passages from authentic scriptures and has aptly supported the statement in the matter of offense at the feet of the holy name. From Vishnu Yamala Tantra, Srila Jiva Goswami has proven that one can be liberated from the effects of all sins simply by chanting the holy name of the Lord. Quoting from Markandeya Puran, Sri Goswami Ji says that one should neither blaspheme the devotee of the Lord nor indulge in hearing of others who are engaged in belittling a devotee of the Lord. A devotee should try to restrict the welfare by cutting out his tongue, and being unable to do so, one should commit suicide rather than hear the blasphemy of the devotees of the Lord. The conclusion is that one should neither hear nor allow vilification of a devotee of the Lord. As far as distinguishing the Lord's holy name from the names of the demigods, the revealed scriptures disclose Bhagavad Gita 10.41 that all extraordinary powerful beings are but part and parcel of the supreme energetic Lord Krishna.
Except for the Lord himself, everyone is subordinate. No one is independent of the Lord. Since no one is more powerful than or equal to the energy of the Supreme Lord, no one's name can be as powerful as that of the Lord. By chanting the Lord's holy name, one can derive all the stipulated energies synchronized from all sources. Therefore, one should not equalize the supreme holy name of the Lord with any other name. Brahma, Shiva, or any other powerful God can never be equal to Supreme Lord Vishnu. The powerful holy name of the Lord can certainly deliver one from sinful effects, but one who desires to utilize this transcendental potency of the holy name of the Lord is one's sinister activities, the most degraded person in the world. Such persons are never excused by the Lord or by any agent of the Lord. One should therefore utilize one's life in glorifying the Lord by all means without any offenses. Such activity of life, even for a moment, is never to be compared to a prolonged life of ignorance, like lives of the trees and other living entities who may live for thousands of years without prosecuting spiritual advancement. Hare Krishna. Om Agyantimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guru Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swabham Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanam Namaste Saraswate Deve Gaurvani Prachari Nirvisheshanyavadi Paschat Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakti Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. बहुत सुंदर श्लोक है और इस श्लोक के अंदर के हम क्या क्या बातें देख सकते हैं उसको हम प्रयास करेंगे इसको समझने का, जितना मेरी समझ में आया है और जितना मैंने सुना है उसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो जब ये मैं श्लोक का सही माने में देखा जाए तो मैं जो है ये मैसेज मिस कर गया था। मुझे आज के श्लोक के बारे में पता नहीं था और आज सुबह को एक्चुअली जाना था मुझे एक मंगला आरती के अंदर। ये मार्गशीर्ष महीना चालू है तो परमेश्वर प्रभु यहाँ पर आए हुए हैं दुबई में और वो घर घर के अंदर जो मंगला आरती करते हैं। तो मार्गशीर्ष महीने के हिसाब से आज जो एक प्रभु है उनके घर पर जो था आरती थी तो उसके लिए जाना था, मगर सुबह जब व्रजप्रिया ने बताया कि आपका क्लास है आपको पता नहीं है, मैंने कहा ओ माय गॉड। तो मेरा चलो ठीक है, हरी इच्छा, जितना जो सुना है जो समझा है वो हम प्रयास करेंगे। तो 6 बजे से लेके अभी 7:30 बजे तक। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो मैं वो कह रहा था कि वो 7:30 बजे जो मतलब क्लास था, तो मैंने बोला 7:30 दुबई का टाइम और 6 बजे जो है मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। चलो देखें, जितना प्रयास करते हैं, जितना समझ में आता है तो उसके बेस के ऊपर मैंने जो कुछ पॉइंट्स बनाई हैं और जो समझा मैंने परपट को पढ़ने और तात्पर्य जो है अनुवाद को पढ़ने के बाद में, तो वो मैं प्रयास करता हूँ, जितना समझा है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो जब ये मैं परपट पढ़ रहा था तो उसके अंदर जो ये स्पेशली जो एक पॉइंट यहाँ पर जो बताई गई है, I'll just read that. Better a moment of full consciousness because that gives one a start in searching after his supreme interest. ये और उसके बाद जो तात्पर्य के अंदर बताया है, better to live for a moment with full consciousness of supreme interest to be fulfilled, supreme interest to be fulfilled. तो यहाँ पर वो जो बात आ रही थी, सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं कि भाई no use in living hundreds of years without the knowledge of the problems of life. 100 साल तक तुम जियो और तुमको जीवन का क्या, जीवन के जो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कठिनाइयां हैं, क्या तकलीफें हैं और आपका उद्देश्य क्या है, ये नहीं जानते हुए आप 100 साल जियोगे तो क्या जिया। तो जब ये पढ़ रहा था तो इमीडिएटली देखिए मतलब भौतिक जगत का कितना प्रभाव पड़ता है। बहुत साल पहले हम लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी जिसका पिक्चर का नाम था नमक हराम। ये नमक हराम के अंदर अमिताभ बच्चन नहीं था, ये नमक हराम के अंदर हाँ शायद आई थिंक अमिताभ बच्चन थे अंदर और राजेश खन्ना थे।
तो नमक हराम के अंदर जो मूवी के अंदर एक डायलॉग है, बाबू माशाय जिंदगी लंबी नहीं पर बड़ी हो, तो वो जो है डायलॉग याद आ गया कि वहां पर वो कहते हैं कि जिंदगी जो है लंबी नहीं होनी चाहिए, तो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स नहीं चाहिए हमको, हमको जिंदगी बड़ी चाहिए। मगर हमको जिंदगी, जो भक्त लोग हैं वो बड़ी जिंदगी किस में देखते हैं, वो भक्तों के संग में अपनी जिंदगी को देखते हैं। सो टू हैव दिस, ये लंबी जिंदगी को मतलब जो संग पाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो श्रील प्रभुपाद जो बताते हैं हमारा मिशन क्या है, हमको प्रीच करना है, यार देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, जितने भी जिसको मिलते हैं उसको किसी न किसी तरह से हमको जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताना है। और फिर उसके बाद में हम जो ये सब बातें कर रहे हैं, ये किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, हम साधु संघ के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है, 10-12 लोग आते हैं, 15 लोग आते हैं, तो ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे एक गुजराती की जो एक सेइंग आती है, गुजराती में एक सेइंग है, नानू पण मरचू। इसका मतलब क्या होता है, छोटा पर मिर्ची। तो छोटी जो मिर्ची होती है, जो लॉन्ग मिर्ची जिसको बोलते हैं, वो कितनी तीखी होती है, वो एक आधी मिर्ची भी हम नहीं खा सकते। तो इतना छोटा सा ग्रुप है, मगर इस ग्रुप के अंदर इतने बड़े बड़े स्टारवर्ड्स हैं, इतने बड़े बड़े जो हैं भक्त हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन जो शुद्ध भक्तों के माध्यम से हम सुनते हैं, कितनी सारी जो है लीलाएं सुनते हैं, कितनी सारे अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। तो ये जब ऐसे करते धीरे 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 जो है ना ग्रुप बढ़ता जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर गोपी मनोहर प्रभु हमको इस जो कंसिस्टेंटली जो है हमको एक साथ में जोड़े हुए हैं, और हम सुन रहे हैं भागवतम के बारे में। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो है तात्पर्य के अंदर बहुत सारे जो स्क्रिप्चर्स के बारे में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंदर क्या क्या बता रहे हैं, तो एक तो मार्कंडेय पुराण के बारे में बताते हैं, फिर विष्णु यमल तंत्र के बारे में बता रहे हैं। तो ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक फिल्म थी जिसका मूवी का नाम था दोस्त, जिसके अंदर धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी थी। ये काम अभी देखिए, सुबह सुबह मैं पिक्चरों का नाम ले रहा हूँ, बट क्या है, ऐसी चेतना है। तो वहां उस मूवी के अंदर दिखाया है कि धर्मेंद्र जो है एक आई थिंक ही इज फादर हैं चर्च के। तो और इस पिक्चर के अंदर गाना था, गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है। तो ये जो मूवी है उसके अंदर धर्मेंद्र है, उसके पास एक ट्रंक है, संदूक है, जिस संदूक के अंदर मतलब बहुत वजनदार संदूक है। तो वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा बताया गया कि वो चोर है, तो वो ऐसे ऐसे मौके देख रहा होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना जो चोरी का मुझे अवसर मिले। तो वो जब धर्मेंद्र को सुनता है किसी के साथ में बात करते हुए कि धर्मेंद्र को कूली को कहता है कि भाई वो ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो धर्मेंद्र कहता है कि भाई वहाँ कूली बोलता है इतनी वजन वाली बैग है, क्या है इसके अंदर। तो वो वहां पर धर्मेंद्र कहते हैं कि इसके अंदर जो है हीरे जवाहरात से भी महंगी चीज है, और मतलब आप संभाल के ले चलो। तो ये जो बात है वो शत्रुघ्न जो है सुनते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, जब ये धर्मेंद्र सो जाते हैं तो ट्रंक को लेके भागने का प्रयास करते हैं, ऐसे कुछ स्टोरी है। तो जब वो ट्रंक को खोलता है या संदूक को खोलता है तो उसके अंदर से अलग अलग पुस्तकें निकलती हैं। तो कहने का मतलब है जो ज्ञान है वो इन हीरे जवाहरातों से भी बहुत बहुमूल्य है, और इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये आध्यात्मिक ज्ञान तो इससे भी ऊपर है। तो उसके अंदर तो बताया है कि स्वामी विवेकानंद के बुक्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग बुक्स पढ़े हुए हैं, मगर यहाँ पर जो हम जिनकी बात छिलाएं प्रभुपाद यहाँ पर कर रहे हैं वो हमारे ग्रंथ हैं। हमारे इतने सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जो निचोड़ भगवत गीता है, और उसके बाद में भगवान के बारे में जो हम सुनते हैं, भगवान के भक्तों के बारे में सुनते हैं, वो है श्रीमद् भागवतम जो हम अध्ययन करते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके ऊपर। तो ये जो ज्ञान है, श्रील प्रभुपाद आगे इस तात्पर्य में बताते हैं कि पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमने जीवन का जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका कारण क्या है। तो क्या खाना पीना और मौज मस्ती करना ये है? नहीं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं ये आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, और आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए। यानी हमको अपने आप को गेज करना है, हमको अपने आप को देखना है कि हम प्रतिदिन कितनी प्रगति करते हैं। तो ये जो आत्मबोध और जो आध्यात्मिक प्रगति ये कैसे संभव है? तो ये तब संभव है जब हम एक आध्यात्मिक स्तर के ऊपर जो
उच्च स्तर पर है उसके साथ संपर्क करें। तो वो आध्यात्मिक स्तर के ऊपर जो हमारे उच्च स्तर पर है वो कौन है? वो तो हमारे गुरु। तो जीवन के अंदर हमको कोई भी काम सीखना हो, कोई भी काम, तो हमको आश्रय लेना पड़ता है गुरु का। एनीथिंग वी वांट टू लर्न इन द लाइफ, जो भी कुछ सीखना है तो हमको गुरु के पास, म्यूजिक सीखनी है तो गुरु के पास जाना पड़ता है, हमको कुकिंग सीखनी है तो भी हमको गुरु के पास जाना पड़ता है, हमको कुछ मतलब निटिंग सीखना है, सीना सीखना है, स्विंग सीखना है, तो हमको गुरु के पास जाना है। जब तक गुरु का मार्गदर्शन नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हर चीज के लिए जो अब हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो भी हमारे गुरुओं की, हमारे जो टीचर्स हैं उनकी हमारे ऊपर कृपा हुई है। हमने प्रयास किया है, मगर कृपा उनकी हुई तब हम जो है लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो और दूसरी बात यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब आप गुरु है, गुरु के साथ आप अपने आप को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, आप और कभी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसके साथ तुलना करते हो तो क्या है, मतलब ये आप गुरु के साथ में आपकी तुलना करते हो, यानी आप उस गुरु की जो है बेइज्जती कर रहे हो, आप उस गुरु की इंसल्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप गुरु नहीं हो, आपने उनसे सीखा है, मतलब आपका स्तर नीचे है, उन्होंने आपको जो है ज्ञान दिया है, भले आप कितने भी बड़े हो जाओ, मगर जो ज्ञान उन्होंने दिया है वो आपने उनसे सीखा है, यानी आप उस ज्ञान के हिसाब से आप उनसे नीचे हो। तो कभी भी अपने गुरु को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। और जो ये आध्यात्मिक विषय है, ये हमको गुरु हमको क्या सिखाते हैं? टू लर्न एनीथिंग वी नीड टू ट्रेन। हमको पहले कुछ भी सीखने के लिए हमको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, और गुरु के अंडर जो है हमको सीखना पड़ता है। गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से हम ये जो भी कार्य है वो हम सीख सकते हैं। तो जो भी किसी भी कार्य की जो साइंस है, वो चीज कैसे चलती है, क्या है, तो वो हमको गुरु सिखाते हैं। टू लर्न एनीथिंग वी नीड टू ट्रेन। ओके, और उसके बाद में ऑफकोर्स आजकल के हम देखते हैं कि आजकल के जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, और आजकल के जो मतलब जो बच्चे हैं वो कैसे हैं। तो आजकल की जो एजुकेशन है, इट हैज गॉन टू डॉग्स, जैसे कहते हैं कि भाई वो मतलब इतनी बुरी हो गई कि कुछ पता ही नहीं है। तो बस नाम मात्र के लिए, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य क्या है आजकल के एजुकेशन का, भौतिक एजुकेशन का उद्देश्य क्या है कि भाई अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, ये हमारा उद्देश्य है। यानी कोई भी कार्य करना है तो उसके बाद में करना क्या है, मतलब उद्देश्य उस सीखने का क्या है कि भाई मेरा हाथ नीचे रहेगा और मुझे तनख्वाह मिलेगी। यानी हम कौन हो गए? कृपण बन जाते हैं हम, जो बोलते हैं ना कि भाई हम हमेशा एक ब्राह्मण तो नहीं बनते, क्षत्रिय नहीं बनते, वैश्य नहीं बनते, हम शूद्र की तरह हर कार्य के पीछे अपना हाथ नीचे करते हैं, और तनख्वाह के लिए, यानी अपनी आमदनी के लिए और अपने जो है सैलरी के लिए हम अपना हाथ नीचे करते हैं। और यही हमको जो भौतिक विषय है, भौतिक जो एजुकेशन हमको यही सिखाता है। तो इसी के ऊपर एक बात याद आती है कि एक बार जो इंस्पेक्टर्स होते हैं स्कूल्स के अंदर, जो एजुकेशनल इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो एक बार इंस्पेक्शन हो रही थी एक स्कूल के अंदर। तो वहां पर एक इंस्पेक्टर गए, तो उन्होंने एक क्लास के अंदर गए, तो क्लास के अंदर 5वीं 6ठी कक्षा का जो क्लास था, तो वहां पर वो इंस्पेक्टर जाके उन्होंने पूछा कि कौन सा विषय चल रहा है। तो उस समय मॉरल साइंस का, जो भगवान के बारे में और अपनी हमारे मोरालिटी के बारे में, इसके ऊपर विषय चल रहा था। तो स्कूल के अंदर जितने बच्चे थे, वो मैक्सिमम जो बच्चे थे वो हिंदू बच्चे थे, और उनका जो मैनेजमेंट थी वो भी हिंदू थी। तो वहां पर जब वो इंस्पेक्शन वाले गए, तो जो इंस्पेक्टर ने जाके टीचर से कहा कि आप क्या पढ़ा रहे हो? तो बोला मॉरल साइंस का टॉपिक चल रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ। तो बच्चों से कहा, बच्चे आपको पता है कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो बच्चे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, शांत हो गए, एकदम चुप हो गए। तो कोई बच्चा जवाब नहीं दे सका। तो इंस्पेक्टर जो है नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आपने बच्चों को ये बेसिक बात नहीं बताई कि शिवजी का धनुष किसने तोड़ा। तो जो टीचर है वो टीचर्स को क्या जवाब देती है? टीचर्स को कहती है कि मेरे बच्चे बहुत जो है डिसिप्लिन्ड हैं, वो मेरे बच्चों ने किसी ने भी नहीं तोड़ा होगा, ये मैं आपको खातिरी के साथ में कह देती हूँ।
तो जो ये इंस्पेक्टर थे वो बहुत गुस्सा हो गए, उनको बहुत गुस्सा आया। तो वो सीधा जाके प्रिंसिपल के रूम में गए। प्रिंसिपल के रूम में जाके उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल जी, आप मैंने जाके बच्चों को सिर्फ ये पूछा कि रामायण के माध्यम से शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो नहीं आपके बच्चों को पता है, नहीं टीचर को पता है। टीचर ये कहती है कि भाई मेरे बच्चे बहुत डिसिप्लिन है, किसी ने बच्चों में से किसी ने नहीं तोड़ा होगा। तो जो प्रिंसिपल कहते हैं, अच्छा ठीक है, आप इस बात को रफा दफा कर दो, जिसने भी तोड़ा होगा उसकी भरपाई, उसकी जो है पैसे हम दे देंगे। तो कहने का मतलब है इवन प्रिंसिपल को भी पता नहीं। तो आजकल के एजुकेशन इस तरह से। तो हम अगर किसी के पास जाते हैं सीखने के लिए, तो वो कौन होता है? गुरु जो होता है, गुरु को कहते हैं तत्वविद। वो जो डिवोटीज हमेशा जाते हैं, वो जाके तत्वविद को मिलते हैं। तत्वविद का मतलब क्या होता है? जिसको अपने विषय, जिस विषय के ऊपर वो ज्ञान दे रहे हैं, उसका पूर्ण नॉलेज हो, पूर्ण रूप से उसको जानकारी हो, उसको तत्वविद कहते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं, उनको अपने प्रोफेशन, जो अपना कार्य करते हैं, उसके अंदर भी उनका पूरा नॉलेज नहीं है। वो इधर-उधर भटकते रहते हैं। कभी उनको छोटी सी कोई बात पूछो तो बोला, नहीं यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये नहीं पता। यानी पूर्ण रूप से वो है ही नहीं, वो टीचर्स नहीं है। तो सही माने में जो गुरु होते हैं, वो गुरु कौन होते हैं? गुरु इज तत्वविद। तत्व इज द वन हु नोज व्हाट ही इज डूइंग। क्या कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इससे क्या होगा। तो ये बात जो है एक तत्वविद जानते हैं, वो तत्वविद हमारे गुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। तो सिमिलरली when you want to know कृष्णा, जब आपको कृष्ण के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको किसके पास जाना पड़े? तो कृष्ण के बारे में जानकारी जो प्राप्त करनी है, तो कथा उपनिषद में कहा गया है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव विगच्छति श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। यानी इसका मतलब क्या होता है कि तद विज्ञानम, अगर आपको ये आध्यात्मिक साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में जानना हो, तो ये कथा उपनिषद में कहा गया है कि आपको किसके पास जाना चाहिए? तो वो कहते हैं कि आपको गुरु के पास जाना चाहिए। और वो गुरु क्या होना चाहिए? ये आधा श्लोक नहीं सुनना है। वो क्या? तद विज्ञानम स गुरुम, यानी विज्ञान के बारे में जानना है तो हमको गुरु के पास जाना है। मगर उसके आगे क्या बताया? तो ऐसे गुरु के पास जाना है जो ब्रह्मन, यानी भगवान के बारे में जानता हो और पूर्ण रूप से उसकी निष्ठा हो उसके अंदर। तो मतलब हमको डिसिप्लिन सक्सेशन के अंदर जाके ये ज्ञान को आज हम देखते हैं कि लोग जाते हैं कहीं पर भी, जो भौतिक चीजों के लिए जाते हैं लोग, तो उनको पता है कि वो किस कार्य से जाते हैं। लोग जाते हैं किसी गैरेज के अंदर, तो अपनी गाड़ी या अपनी मोटरसाइकिल या अपनी जो स्कूटी को रिपेयर कराने के जाएंगे। वहां पर जाके ये नहीं कहेंगे कि मुझे मसाला डोसा चाहिए। वो वहां पर जा रहे हैं तो क्या लेने जा रहे हैं? वहां पर जाके ज्ञान लेने। वो उसकी अपनी गाड़ी का रिपेयरिंग के लिए जाएंगे, या तो वहां पर जो है उसका ज्ञान है उनको कि मुझे ये गैरेज में के ये कार्य करना है। अगर वो किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे, तो रेस्टोरेंट के अंदर उधर जाके खाना ऑर्डर करेंगे, वहां जाके गाड़ी रिपेयरिंग की बात नहीं करेंगे। तो उनको ये पता है, मगर ये भौतिक विषयों के बारे में उनको थोड़ी बहुत जानकारी है। मगर जब वो मंदिर में जाते हैं तो उनको ये पता नहीं है कि मंदिर में क्यों जानते हैं। वहां पर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर वो किस कारण जाते हैं, वो उनको पता नहीं। वहां जाते कि अरे भाई भगवान से मांगने जा रहा हूँ। अरे मांगते 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 तो तुमने पर जीवन व्यतीत कर दिया, तुमने जीवन खत्म कर दिया। अभी भी तुम मांगने के लिए जा रहे हो। मंदिर इसके लिए नहीं होते। तो वहां पर मैं नारियल फोड़ने जाता हूँ, मेरी जो बात है पूर्ण हो गई तो मैं नारियल फोड़ने जा रहा हूँ। अरे नारियल फोड़ने के लिए मंदिर में जाना, तुम्हारी बात पूरी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हारी बात पूरी क्यों हुई। तुमने जो अपने किसी चीज के ऊपर आस्था लगा के रखी थी, तो वो पूरी क्यों हुई, तो उसका ज्ञान उसको नहीं है। मगर मुझे वहां पर जाके जो मैंने मन्नत मांगी थी, वहां पर इतने 5 नारियल फोड़ने या 7 नारियल फोड़ने, तो ये ज्ञान जो है उनको पता है। उनको ये पता नहीं है कि मंदिर में हम क्यों जाते हैं। तो मंदिर किस लिए है? तो मंदिर जो है एक इंस्टीट्यूट है, मंदिर एक जो है जगह है जहां पर हमको ज्ञान मिलता है, वहां आत्मा बोध होता है। और वहां पर हमको जो है ऐसे गुरु वहां पर है रहते हैं जो हमको ज्ञान देते हैं। तो हम जब इस्कॉन के मंदिर में जाते हैं, सुबह सुबह जाके लेक्चर सुनते हैं श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के ऊपर, तो हमको वहां पर गुरु मिलते हैं। और वो गुरु कौन होते हैं? जो तत्वविद होते हैं, ऐसे जिनको उनके विषय के बारे में, उनके जो विषय के ऊपर बात कर रहे हैं उनके ऊपर उनको ज्ञान है। और वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? वो ऐसे
निष्ठा वाले जो उनके गुरु हैं उनके साथ में वो कनेक्टेड हैं, तो अगर इनके पास जो किसी कारण जो वक्ता है उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो वो तत्ववेद यानी उनके गुरु के साथ में कनेक्ट करके आपको जो भी आपके प्रश्न है उसका उत्तर दे सकते हैं। तो गुरु के पास हम गुरु के पास क्यों जाते हैं, तो गुरु के पास जाने का कारण क्या है, तो ये भी लोगों को पता नहीं कि हम गुरु के पास क्यों जाते हैं। तो गुरु हमको क्या बताते हैं? गुरु हमको बताते हैं कि हमारा जो भगवान के साथ संबंध क्या है। पहले तो हमने जन्म क्यों लिया है, जन्म के बाद में हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है, उसके बाद में हमारा उद्देश्य है कि भगवान के साथ में हम कनेक्ट हो। तो भगवान के साथ में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? जो हमारा रिलेशनशिप है, जो उनके साथ में संबंध है, वो कमजोर पड़ गया है या टूट गया है, तो उस कमजोर या टूटे हुए जो रिलेशन को, संबंध को कैसे स्थापित किया जाए, ये जो है गुरु हमको बताते हैं। तो गुरु हमको क्या बताते हैं? तो जो आईटी के अंदर है, जैसे यहाँ पर जो है सनातन निताय प्रभु हैं, वो आईटी के साथ में कनेक्टेड हैं, तो वो बता सकते हैं कि सैप SAP करके एक प्रोग्राम होता है। सैप का मतलब क्या होता है? तो सैप का मतलब होता है, पहले S स्टैंड्स फॉर सिस्टम, A स्टैंड्स फॉर जो एप्लीकेशन, और P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो SAP ये हमको जो है ना सैप, ये सिस्टम हमको कौन सिखाते हैं? गुरु सिखाते हैं। ये सैप क्या है? तो भौतिक जगत के अंदर सैप का मतलब होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट फॉर डेटा प्रोसेसिंग, यानी बहुत सारा जो डेटा है या बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, उसको किस तरह से सिंक्रोनाइज करके एक जगह पे किया जाए। तो उसके लिए आपको अच्छी सिस्टम चाहिए। उसके बाद में आपको क्या प्रोग्रामिंग करनी है बनाने के लिए उस सिस्टम को, और क्या प्रोडक्ट्स हैं उसको एक ही जगह पर, एक ही कंप्यूटर से आप उसको कैसे सिंक्रोनाइज करके आप उसके अंदर से बेस्ट में बेस्ट रिजल्ट कैसे ले सकते हो, ये आप सैप के माध्यम से सीखो। सैप एक प्रोडक्ट है, एक जो एप्लीकेशन। तो यहाँ पर पता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट यानी सैप SAP। मगर ये SAP क्या है? अगर हम आध्यात्मिक जगत के ऊपर देखना जाएंगे तो सैप स्टैंड्स फॉर, पहले S स्टैंड्स फॉर संबंध। तो संबंध ये गुरु सिखाते हैं, संबंध। उसके बाद A स्टैंड्स फॉर अभिधेय और P स्टैंड फॉर प्रयोजन। तो ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन ये क्या है? तो संबंध यानी पहले हम भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है, भगवान के साथ में कैसे रिलेशन है, भगवान कौन है, भगवान क्या है, तो वो हमको बताते हैं कि भगवान के अंदर कितनी क्वालिटीज हैं। तो बताते हैं षड ऐश्वर्य। तो षड ऐश्वर्य यानी कौन से? BSKRFR, जो हमेशा मैं बताता हूँ। ब्यूटी, फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ BS, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ यानी शक्ति, पूरी शक्तिमान वो है। BSK, K stands for knowledge, then R stands for riches, F stands for fame, R stands for renunciation। तो ये षट ऐश्वर्य पूर्ण रूप से टोटलिटी जिसके अंदर है वो भगवान है। तो ये ज्ञान कौन देते हैं? ये हमको जो हमारे गुरु हैं वो हमको बताते हैं। तो वो हमको ये भी बताते हैं कि कृष्णा wants to help you and कृष्णा can help you। ये मैंने 2-3 दिन पहले मैंने बात बताई थी कि कृष्णा कैन हेल्प यू एंड कृष्णा वांट्स टू हेल्प यू। भगवान आपकी मदद कर सकते हैं और भगवान सक्षम है ये मदद करने के लिए। भौतिक जगत के अंदर आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो आपकी मदद करना चाहते हैं मगर उनके पास क्षमता नहीं है, और कोई लोगों के पास क्षमता है मगर वो आपको मदद नहीं करना चाहते। मगर भगवान ऐसे हैं, भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं, यानी भगवान एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको मदद भी करना चाहते हैं और वो सक्षम भी हैं। तो इसके लिए ये सब हमको ज्ञान कौन देते हैं? ये हमको गुरु बताते हैं। तो वहां पर अभी संबंध स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो गुरु जो है, गुरु आपको बताता है कि भगवान के अंदर कितने गुण हैं। किसी के साथ भी संबंध स्थापित करते हैं तो एक उदाहरण आता है कॉलेज के अंदर एक लड़का एक लड़की को देखता है, तो लड़की को देखता है तो लड़की के पहले वो जो है गुण देखता है, गुण सुनता है। तो अरे ये लड़की तो है जो मिनिस्टर की बेटी है, लड़की बहुत होशियार है, इतना पैसा होने के बाद में भी ये लड़की के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं और बहुत संस्कारी है, लड़की के अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, लड़की के पास मतलब ये है, इतना धन है, इतना। तो ये सब क्वालिटीज सुनने के बाद में वो लड़के के अंदर, लड़का पहले वो क्वालिटीज देखता है। तो इसी तरह ठीक
उसी तरह गुरु हमको क्वालिटीज बताते हैं, भगवान की कितनी क्वालिटीज हैं, भगवान के कितने, जो भगवान की लीलाएं क्या है, भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान की जो जितनी भी लीला है उनको उनकी सूक्ष्मता से डिटेल्स में हमको बताते हैं। तो वो कौन बताते हैं? वो हमको गुरु बताते हैं। तो ये पहले वो क्यों बताते हैं कि जब आपको आप किसी के साथ में संबंध तब स्थापित करते हो जब आप उसके अंदर एक अच्छे गुण देखते हो। तो गुरु हमको भगवान के गुण बताते हैं। तो ये हो गया संबंध। उसके बाद में अभिधेय। अभिधेय का मतलब क्या होता है? तो अभिधेय का मतलब, अभी आपने उसको जान लिया, लड़के ने लड़की को जान लिया, लड़की मतलब बहुत धनी है, मिनिस्टर की बेटी है, बहुत होशियार है, पढ़ने लिखने में होशियार है, संस्कारी है, और उसके अंदर कोई भी जो है बुरी आदतें नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये सब जब हम गुण सुनते हैं, लड़का गुण सुनता है, तो वो क्या करता है? वो फिर जो अभिधेय करता है। अभिधेय यानी उसके साथ में रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए वो क्या करता है कि जब भी वैलेंटाइन डे आता है तो उसको एक कार्ड भेजता है, रोजेस भेजता है, उसको छोटी गिफ्ट देता है। तो ठीक उसी तरह जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में सुन के बाद में बोलते हैं कि इस भगवान को कैसे अप्रोच किया जाए, तो फिर भगवत गीता का श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो हम वहां पर बोलते हैं ये तो सिंपल है, भगवान को रिझाने के लिए भगवान हमको क्या करना है? सिर्फ विथ फुल लव। जिस तरह वो लड़का जो लड़की के प्रति आकर्षित होकर उसको एकदम प्यार से उसको जाके जो है वैलेंटाइन डे कार्ड देता है, उसको फ्लावर्स देता है, उसको गिफ्ट देता है, ज्वेलरी बॉक्स देता है, पर्स देता है, उसको सैंडल्स देता है, ये सब उसको गिफ्ट देता है। ठीक उसी तरह जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भगवत गीता के अंदर बताया गया, ये जब हम भगवान के सामने जो पेश करते हैं, भगवान के सामने हम रखते हैं विथ फुल लव, तो भगवान उसको अपनाते हैं। तो ये जो पहले क्या बताया? पहले बताया संबंध के बारे में, भगवान के बारे में जानना। अभिधेय क्या है? अभिधेय यानी भगवान को कैसे अप्रोच करना, भगवान के साथ में जैसे कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करना। तो ये जो हम जो बोलते हैं कि स्टैब्लिश करने के लिए। उसके बाद में आता है प्रयोजन, SAP, जैसे बताया सिस्टम, उसके बाद में एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट फॉर डाटा प्रोसेसिंग। तो ये P स्टैंड्स फॉर व्हाट? नाउ डेटा प्रोसेस करना यहाँ पर। तो प्रयोजन हमने रिलेशनशिप पहले देख लिया कि भगवान के अंदर क्या गुण है। उसके बाद में रिलेशन स्थापित करने के लिए हमने भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों को हमने जो अब सेवा के माध्यम से, प्योर लव के माध्यम से हमने उनको गिफ्ट देना शुरू किया, भगवान को अर्पण करना शुरू किया विथ फुल हार्ट। उसके बाद में क्या? उसके बाद में आता है प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन होता है जब आपने भगवान के साथ में रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया, उसके बाद में इसका जो फ्रूट्स मिलते हैं, जिस तरह वो लड़के ने जो है लड़की को अप्रोच किया, कॉलेज की लड़की को अप्रोच किया, उसके बाद में उसने जो है उसके साथ में उससे बातचीत बढ़ाई, गिफ्टें दी, उसके बाद में प्रयोजन। ना उसका फ्रूट क्या हो गया? लड़की ने भी लड़के को देखा कि ये लड़का संस्कारी है, अच्छा है, वो लड़की ने उसके साथ में रिलेशनशिप स्टैब्लिश की। उसके बाद में आगे जाके पेरेंट्स से मिले, पेरेंट्स ने उनकी शादी अरेंज की, शादी के बाद में आगे जो है उनकी फैमिली बढ़ी। तो ठीक उसी तरह जब भगवान के साथ में, भगवान के बारे में हम सुनते हैं, सुनने के बाद में भगवान को हम अप्रोच करते हैं, उसके साथ में रिलेशन स्टैब्लिश होता है। तो भगवान के साथ में रिलेशन स्टैब्लिश करने के बाद में क्या होता है? तो बाद में जो हमको वो एक्सपीरियंसेस जो हैं, तो आपको हर जगह को एक्सपीरियंस मिलेंगे, आपको वहां से प्रेम मिलेगा। भगवान की जब भगवान से आप बात करते हो, भगवान से जब आप भगवान के सामने जो प्रोडक्ट्स अपने रखते हो, जो भगवान के सामने आपने जो भगवान को ऑफर किए, तो वो जब प्रेम से ऑफर करते हो तो वहां से भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं, वो भी आपको प्रेम देते हैं, आपको संतुष्टि मिलती है। उसके बाद में आपकी जो आध्यात्मिक जो बेल है, जो यानी कहते हैं कि अंकुरित जो आपके मन के अंदर जो भक्ति के बाद में जो बीज अंकुरित हुआ है, उसको नरिशमेंट मिलती है, उसको शक्ति मिलती है, और वो जो लता है, बीज जो प्रेम लता है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसके बाद में आपको जीवन के अंदर सब क्लैरिटी मिलती है, सब क्लैरिटी होती जाती है। तो संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, तो ये तीन को अगर हम याद रखेंगे तो ये गुरु के कार्य हैं। गुरु का एक कार्य ये है। एंड एनीवन जो गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु के पास जाने के लिए हमको क्या करना है? तो प्योरिटी, क्लैरिटी चाहिए। जो गुरु कहते हैं वही हमको एग्जैक्टली करना है, तब हमको सही माने में जो प्रयोजन, जो सही माने में मिलेगा, और ये गारंटी के साथ में।
गारंटीड है। अगर गुरु के माध्यम से, गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से चलेंगे तो हमको ये 100% श्योरिटी है कि हमको इसका प्रयोजन, यानी हमको ये चीजें मिलेंगी। क्या क्या चीज मिलेंगी? तो पहले आपको भगवान से प्यार मिलेगा, भगवान से प्रेम मिलेगा और प्योर प्रेम मिलेगा। उसके बाद में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। जो भगवान के लिए जो भी आप कार्य करते हो उसमें संतुष्टि मिलेगी। आपकी जो लता बीज है, भक्ति लता बीज है, उसको नरिशमेंट मिलेगी, उसको जो है खाद मिलेगा, उसको जो है शक्ति मिलेगी। और उसके बाद में आपको जीवन के अंदर क्लैरिटी मिलेगी कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। तो गुरु आपको ये सिखाते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, जब आपको ये सैप हो गया, यानी आप संबंध, प्रयोजन, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों जब क्लैरिटी से एक माध्यम से हो गए तो आपको भगवान के अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। और विश्वास जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रद्धा, भगवान के अंदर श्रद्धा बहुत मतलब दृढ़ता से बढ़ती जाएगी। फिर आप क्या कहोगे भगवान को कि हे भगवान, आप मुझे किसी भी स्थिति में रखो, आप मुझे अपने पैरों तले रौंद दो, या तो आप मुझे अपनी गोदी में उठाओ, मुझे दोनों जो स्थितियां हैं मंजूर हैं। तो ये जब होगी धीरे धीरे, ये आपकी जो है जो प्रार्थनाओं के माध्यम से ये होगा। और ये जो है ना, कहते हैं कि वाणी का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। तो जो मैं बोल रहा हूँ ये अनुभव का विषय, यानी जब आप अनुभव करोगे, जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो तब आपको ये जो है पूर्ण रूप से ज्ञान होगा कि गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड रीजन कि गुरु का क्या कार्य है, तो गुरु का कार्य क्या है, तो जैसे एक जो कारपेंट्री होती है, कारपेंट्री का जो वर्कशॉप होता है, यहाँ पर बड़े बड़े फर्नीचर्स बनते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे लकड़ियां काटते हैं तो भूसा जमा हो जाता है, लकड़ी का भूसा जमा हो जाता है। इन लकड़ियों के भूसे के अंदर बहुत सारा, समझ लो 50 किलो, 20 किलो, 50 किलो तक जो ये है भूसा जमा हो गया। अब जब ये जो कारीगर वहां पर काम करते, कारपेंटर काम करते हैं, तो बहुत सारी कीलें जो नेल्स होती हैं, वो कीलें जो है ना वो भूसे के अंदर मिक्स हो गई हैं। अब उस भूसे के अंदर से कीलों को निकालना बहुत मुश्किल है, कैसे निकाल सकते हो? तो आप वहां पर एक पावरफुल मैग्नेट या लोचुंबक वहां पर रख दो, तो जितनी भी जो कीलें हैं वहां से वो लोचुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और वहां पर वो चली जाएंगी। तो ठीक उसी तरह हमारी इच्छाएं इतनी हैं, हमारी कामनाएं जो कभी काम नहीं आती वो इतनी हैं, इतनी कामनाएं हैं कि हम उसको कैसे, तो वहां पर एक जो तत्वज्ञानी है, जो तत्वविद है, उन्होंने इसके बारे में बताया कि अगर आपके पास जो आकाश जितना बड़ा पेपर हो और जितनी भी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जंगल है उसमें से आप कलम बनाओ, जो है पेन बनाओ, और उस पेन को जो जितने भी 7 समुंदर हैं, 7 समुंदर के पानी को शाही बनाओ, और उसके जो इस पेन के माध्यम से, उस शाही के माध्यम से आप उस पेपर के ऊपर यानी आकाश के ऊपर आप आपकी इच्छाएं लिखते जाओ। आपका ये सब खत्म हो जाएगा, सब पेन खत्म हो जाएगी, आपकी इंक खत्म हो जाएगी, आपका जो पेपर है वो भी खत्म हो जाएगा, मगर आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी की जो समुद्र की लहरें कितनी हैं, अनगिनत हैं, तो उसी तरह हमारी इच्छाएं हमारी बढ़ती जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती। मगर यहाँ पर अभी गुरु कैसे कार्य करते हैं, तो गुरु उस लोचुंबक जो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो उसको केंद्रित कर देते हैं, वो उसको एक सिंक्रोनाइज करके किस तरफ केंद्रित कर देते हैं, तो मैग्नेट किस तरह से केंद्रित करता है, तो अपनी तरफ पूरा अपनी तरफ खींच लेता है। तो जो गुरु है वो आपकी जितनी भी इच्छाओं को है वो डाइवर्सिफाई करते हैं, उनको केंद्रित कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ। तो जब आपकी इच्छाएं भगवान की तरफ बढ़ने शुरू हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, तो आपकी इच्छाएं भी कम हो जाती हैं, और जो भी भौतिक इच्छाएं वो तो कम होते 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 खत्म भी हो जाती हैं, और आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह से गुरु क्या करते हैं, गुरु हमेशा जो हमारी इच्छाएं हैं उनको केंद्रित करते हैं भगवान की तरफ। जब हम मतलब ये देखते हैं कि इतनी सारी बातें हैं, तो
हम डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, और डाइवर्सिफाई होने के बाद में हमारा जो पूरा केंद्र किस तरफ जाता है, भगवान श्री कृष्ण की तरफ जाता है। और जब हम केंद्रित हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं जो है वो सिंक्रोनाइज होकर एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, तो धीरे धीरे हमारी भौतिक इच्छाएं कम हो जाती हैं, और आध्यात्मिक इच्छाएं जो हैं, जो भगवान को रिझाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए, वो हमारी और प्रफुल्लित होती है। और इसके अंदर हमको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले तो गुरु जो है हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा, जब हम जितने भी शुद्ध भक्तों के साथ में, जितने भी भक्त हैं उनके साथ में संबंध में मतलब संबंध स्थापित करेंगे, तो एक प्रेम उत्पन्न होगा। उसके बाद में एक सेटिस्फेक्शन होगा, आपको संतुष्टि मिलेगी, आपकी भक्ति लता बीज को नरिशमेंट मिलेगी, और फाइनली आपके जो सोचने समझने के अंदर आपको क्लैरिटी मिलेगी, जो आप कार्य करते हो वो क्लैरिटी मिलेगी। तो इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कोई इसमें त्रुटि हो या कोई कुछ कम हो तो आप मुझे बता दें, मैं इसको प्रयास करूंगा उसको सही करने का। और कुछ बातें हैं आपको जो ऐड करनी हो तो प्लीज आप ऐड कर सकते हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा क्लास था। एंड सॉरी, आई थिंक पता नहीं मतलब आपको कैसे मैसेज आपको मिला नहीं, तो अगर होता आपके पास टाइम तो और अच्छा प्रिपरेशन होता था। तो अच्छा इसको प्रेजेंट किया बहुत, तो बहुत कुछ आपने इसे मैं खाली एक दो चीज और इसमें ऐड करना चाहता था। जैसे इसमें जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी और भी चीजें ऐड करते हैं। जैसे कल का जो श्लोका था तो उसमें ऑफेंसेस के बारे में था, तो आज के पर्पस में भी प्रभुपाद जी थोड़ा सा उसको और इलेबरेट करते हैं तात्पर्य में। सो काफी मतलब वैष्णव अपराध और भगवान के नाम की महिमा, मतलब इतना भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि कई करोड़ों जन्म के पाप जो है वो मिटा देता है। तो कभी कभी उसको हम लोग जो है इतना लाइटली ले लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है मतलब ऑफेंसेस जो है हम लोग को उसमें बचना चाहिए। अब जैसे जीव गोस्वामी जी पूरा मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने ये सब इसमें ऐड किया हुआ है। प्रभुपाद जी का मतलब स्टडी कितना पावरफुल है। मतलब जस्ट आई वाज थिंकिंग कि मतलब इट वाज सच मतलब उनका तात्पर्य में ही यूज्ड टू कनेक्ट, मतलब पता नहीं कौन से पुराण, कौन से उपनिषद प्रभुपाद जी कनेक्ट करते थे। सो दैट वाज वेरी नाइस पॉइंट। जस्ट वांटेड टू ऐड apart from your wonderful points, so just wanted to add that. Thank you Prabhu. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस। ट्रूली वो मैंने पढ़ा था, मुझे उसके ऊपर बात करनी थी, मगर आई डो नॉट नो हाउ इट मिस्ड आउट। कि स्पेशली जो है यहाँ पर बताया कि हमको जो है अगर कोई ये करता है, डिवोटीज की ब्लास्फेमिंग करता है, उसकी निंदा करता है, तो उसका एक तो पहले नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी ने सुन लिया या किसी ने कर लिया, तो पहले तो उसकी खुद की स्वयं की जबान को काट देना है, यानी उसके टंग को काट देना है, जीवा को काट देना है। अगर वो नहीं कर सकता है तो ही शुड गो एंड कमिट सुसाइड, यानी उसको आत्मदाह करना है। अगर वो भी नहीं कर सकता है तो उसको क्या करना चाहिए, तो वो तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, हियर द ब्लास्फेमी। इसका उद्देश्य क्या है कि न ही उसको किसी की जो प्रपंच सुननी है, नहीं इसको किसी की प्रपंच करनी है। और उसके बाद में जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बहुत एक वंडरफुल स्टेटमेंट जो आपने बताया कि भगवान का नाम इतना पावरफुल कैसे है। तो एक जो मैं ये पॉइंट पढ़ रहा था, जस्ट रीड आउट 1 मिनट। द पावरफुल इन द यहाँ पर the powerful holy name of the Lord can certainly deliver one from sinful effects, but one who desires to utilize the transcendental potency of the holy name of the Lord in one's sinister activity is the most degraded person in the world. यानी भगवान के नाम के माध्यम से उसको कोई पाप कर्म करना है, तो ये सबसे जो है नीचा आदमी है। Such a person are never excused. भगवान
और भगवान के भक्त उसको कभी भी जो है माफ नहीं करते। तो और दूसरा एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कृष्णा जो मतलब बताते कि जितने भी देवी देवता हैं, देवी देवताओं से जो पावरफुल मतलब कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो जब देवी देवताओं के पास जो पावर होगा उससे ज्यादा पावर तो मतलब भगवान श्री कृष्ण के पास है। तो ठीक उसी तरह और वहां पर मतलब ये भी जो शास्त्र बताते हैं कि भगवान ने अपनी पोटेंसी यानी भगवान ने अपनी शक्ति जो है अपने नाम में डाल के रखी है। तो यानी कहने का मतलब है कि एक तो पहले भगवान मतलब इसको अगर हम हायरार्की से समझने का प्रयास करें तो जितने भी देवी देवता हैं वो नीचे स्तर पर हैं, मतलब ऑफ कोर्स नॉट इन दैट सेंस, मगर एक बात बताने के हिसाब से कि वो एक स्टेप 3 के ऊपर है। स्टेप 2 के ऊपर भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण ने ही अपनी जितनी पोटेंसी है वो अपने जो है नाम में डाल के रखी है। यानी व्हेन इट इज इन द नेम इटसेल्फ, दैट मींस हाउ इंपॉर्टेंट इज टू चैंट द नेम। यानी भगवान का नाम जप करना कितना महत्वपूर्ण है और हम लोग जैसे आपने सही बताया कि हम उसको कितना लाइटली लेते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। हरे कृष्ण। सत्यराज प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा आवाज आ रहा है? एक्चुअली मेरा नेटवर्क कट हो रहा है, तो आवाज आ रहा है प्रभु जी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु 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 आपके आपका जो है ना, आपका नेटवर्क तो पावरफुल है, आपका आवाज आ रहा है, आपके फोन का आवाज थैंक बीच यू में प्रभु टूट रहा है। जी। ओके, क्या अभी आ रहा है प्रभु जी? मैं हाँ अभी एकदम एक्चुअली साफ है प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी आप जो संदूक के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं जस्ट सोच रहा था वही एक संदूक थी जो शिला प्रभुपाद यूएस लेके गए थे जलदूता से। तो वो संदूक में से 2 भागवतम कैंटो थे, तो वही हम लोग नरिश कर पा रहे हैं अभी हम लोग। उसकी वजह से हम लोग कृष्ण भक्ति क्या है वो मैं मेरी बात कर रहा हूँ, क्या है कृष्ण भक्ति समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया वही संदूक में जो ज्ञान था वो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। सो थैंक यू शिला प्रभुपाद। और जैसे आपने बताया कि जो लाइफ है वो बड़ी होनी चाहिए, जो हमें शिला प्रभुपाद जी ने सिखाया। तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद जी का लाइफ उन्होंने कैसा बड़ा किया। मतलब वो बोल रहे थे कि हम सबके पास 24 आवर्स है, तो उन 24 आवर्स में प्रभुपाद वो एक्चुअली थोड़ा सा मटेरियल एग्जांपल भी उन्होंने दिया था। वो बोले थे कि आपको पता है कि 50 ओवर का मैच रहता है, फिर बाद में 20 ओवर्स का आ गया, फिर अभी 10 ओवर का आ गया। तो बोले वैसे ही अपना जीवन है। तो मतलब हम लोग का जो ओवर से कम होते जा रहा है और टारगेट बड़ा होता जा रहा है, तो कितना सीरियस होना चाहिए। तो वो बोले थे कि लाइफ बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि हम लोग को कृष्ण भक्ति इतनी स्ट्रांगली करनी चाहिए। और अब थ्रू आवर गुरु और भागवतम कैसा रीड करना है वो सब वो बता रहे थे कि वैसे ही लाइफ अपनी बड़ी हो जाएगी। और तीसरा चीज जो आपने बता रहे थे कि गुरु के बारे में आप बता रहे थे, तो आज हिज होलीनेस त्रिविक्रम स्वामी महाराज जो शिला प्रभुपाद डिसाइपल है, वो आज श्री श्री राधा गोपीनाथ जी टेम्पल में है। तो उनके क्लास में प्रभु जी महाराज बता रहे थे, महाराज ने बताया कि एक प्रभु जी थे जो लंदन में मतलब उन्होंने मंदिर ज्वाइन किया और उन्होंने मतलब शिला प्रभुपाद जी के खाली एसोसिएट कर रहे थे। तो उनको जस्ट मींस लाइक मे बी वो नए भक्त रहेंगे, तो शिला प्रभुपाद ने पूछा उनको कुछ 1-1.5 महीने के बाद शिला प्रभुपाद उनको पूछा कि डू यू नो हु इज कृष्णा? तो बोले थे कि नो शिला प्रभुपाद, आई डोंट नो हु इज कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि इट्स ओके नो प्रॉब्लम, बट डू यू नो हु इज मी? तो बोले यस शिला प्रभुपाद, यू आर माय गुरु। तो शिला प्रभुपाद जी ने बताया दैट्स इनफ, इफ यू रिमेंबर मी यू विल रिमेंबर कृष्णा। फिर महाराज बोल रहे थे कि व्हाट इज रिमेंबर ऑफ शिला प्रभुपाद? दैट मींस यू आर ओबेइंग हिज टीचिंग्स, you are remembering Srila Prabhupada means you are associating with his books, you are associating with his devotees who are following Srila Prabhupada। तो याद आ रहा था प्रभु जी, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा क्लास था।
थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर। देखिए अभी मतलब आप डिवोटीज के संग में रहते हो तो आपकी चेतना कहाँ गई कि आपकी चेतना संदूक के माध्यम, संदूक शब्द सुनने से आपको जो है शिला प्रभुपाद याद आए। और मेरी मतलब मति देखो कि उस समय मैं पिक्चर की बात कर रहा था। हरे कृष्णा। सूरत माधव प्रभु, सनातन निताय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था। एज यूजुअल आप जो आपका जब क्लास रहता है तो आप बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देते हैं। प्रभु जी, आपने वो जो ओप्युलेंसेस के लिए कुछ एक्रोनिम बताया था, वो क्या था प्रभु जी? BSKRFR। क्या? BSKRFR, ये मैंने कैसे याद किया? BSK करके एक कंपनी है which is like I'm talking about 1980s। तो उस BSK करके एक कंपनी थी फ्रॉम फ्रांस, तो मैंने उसको याद करके, उसके जो शूज बहुत अच्छे आते थे वो कंपनी के। तो जब ये मतलब व्हेन आई जॉइंड इस्कॉन, तो उस समय पे ऐसे ही सडनली जब मतलब एक्रोनिम्स, मेरी आदत है एक्रोनिम्स के हिसाब से कोई चीज़ों को याद करने का, तो मैंने पूरे जो जगलरी उसको ठीक किया, तो उसमें ऐसा लगा कि BSK, मैंने हाँ ये तो फ्रांस की कंपनी है। तो इसके लिए अगर आप देखोगे BSK R मैंने इसमें ऐड किया, और FR यानी फ्रांस। तो B stands for beauty, S stands for strength, K stands for knowledge, उसके बाद BSKR, R stands for riches, F and R is a abbreviation for France. तो F stands for fame and R stands for renunciation. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और ये जो भी संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तो ये याद ही नहीं आ रहा था। कभी मैं संबंध बोलता हूँ फिर प्रयोजन बोल देता हूँ। तो फिर उस समय बैठा था तो ये भी पढ़ रहा था, तो मैंने बोला ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तो सैप हो गया। तो सैप से फिर आइडिया आ गया कि अरे सैप जो है यानी सिस्टम, एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ओके, और कोई भक्त कुछ पूछना चाहता है या कुछ ऐड करना चाहता है, ये वी कैन टेक अप। नहीं तो फिर हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्लास आपका बहुत अच्छा था। प्रभु जी एक बार आप बता सकते हैं क्या वो आपने जो बताया था संबंध, अभिनय और प्रयोजन के बारे में? हाँ माता जी, संक्षेप में बता दूंगा। ऐसे रिकॉर्डिंग तो है, तो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको पता चल जाएगा। संबंध मीन्स आप किसी के साथ संबंध स्थापित करते हो, तो आप संबंध कैसे स्थापित करते हो, पहले उसके बारे में जानकारी करते हो कि वो क्या है, कैसे है। तो वो संबंध यानी आपको ज्ञान मिलना चाहिए उस जिसके साथ में आपको संबंध स्थापित करना है। तो गुरु है जो आपको भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताते हैं, उनकी जो गुप्त बातें हैं, जो मतलब बहुत गुह्यतम बातें हैं, वो आपको गुरु बताते हैं और समझाते हैं। हम पढ़ सकते हैं हर जगह पे, मगर उनकी जो इंट्रिकेसीज है, बहुत जो गुह्यतम बातें हैं, वो उनकी क्लैरिटी, जो स्पष्टता कौन बताता है, हमको गुरु बताता है। तो पहले हमको गुरु कृष्ण के गुणों के बारे में बताते हैं। तो ठीक उसी तरह जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर लड़का और लड़की है, लड़का जो है कॉलेज के अंदर लड़की के बारे में सुनता है कि ये लड़की बहुत सुंदर है, लड़की बहुत मतलब
सुशील है, लड़की के पास लड़की जो है मिनिस्टर की बेटी है, काफी पैसा है, यहाँ पर रहती है, वो सब उसको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। तो ठीक उसी तरह जो गुरु है हमको भगवान कृष्ण के बारे में सब इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये पहले ये फर्स्ट स्टेप हो गया। संबंध स्थापित करने के लिए आपको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। जिससे संबंध स्थापित करना है उसका ज्ञान चाहिए। तो ये हो गया संबंध। और उसके बाद में आता है अभिधेय। तो अभिधेय मतलब क्या है? आगे आपने लड़की के बारे में जान लिया, लड़के ने लड़की के बारे में जान लिया, मगर अब वो लड़की को कैसे रिझाए, तो वो क्या करता है, वो वहां पर वैलेंटाइन का कार्ड देता है उसको, उसके गिफ्ट्स देता है, शूज देता है, बैग्स देता है, परफ्यूम देता है। तो ऐसे करके उसके साथ में वो चीजें देकर उसके साथ में उसके नजदीक आने का प्रयास करता है। तो ठीक उसी तरह हम भगवान के पास जब हम जाएंगे और भगवान को हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जब हम अर्पित करेंगे प्रेम के साथ में, क्योंकि लड़का भी जो है प्रेम के साथ में उस लड़की को दे रहा है, तो ठीक उसी तरह हम भी जब भगवान के पास जाएंगे, भगवान के साथ में जाके वहां पर ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम देंगे भगवान को प्रेम के साथ में। तो ये हमने अभी उसके साथ में हमने पहला हो गया कि भाई मतलब उनका ज्ञान मिला, भगवान के बारे में ज्ञान लिया, तो इन्फॉर्मेशन मिली लड़की के बारे में। उसके बाद में उस लड़की को अप्रोच करना है, उसके पास जाना है, तो वो कैसे होगा? तो लड़की के पास अप्रोच करने के लिए उसको गिफ्ट देते हैं। तो ठीक उसी तरह जो भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के साथ में प्रेम अपना व्यक्त करने के लिए हम भगवान को जो है ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम देते हैं। तो ये अभिधेय हो गया, मतलब रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए, पहले रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए, उसके बाद में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए। उसके बाद में जब इस संबंध और अभिधेय आपने कर लिया, तो इसका जो फ्रूट्स हैं, जो उसका फल मिलता है आपको, फिर लड़की क्या करती है? लड़के के साथ में आकर्षित हो जाती है। फिर लड़की के पेरेंट्स, लड़के और लड़की के पेरेंट्स मिलते हैं और वो फिर उनकी शादी करवाते हैं और फिर वो आगे उनकी लाइफ बढ़ती है। तो प्रयोजन इज व्हाट? प्रयोजन इज द आउटकम। ये संबंध और अभिधेय का आउटकम जो है वो प्रयोजन है। प्रयोजन यानी क्या? जब भी आप भगवान के प्रति आप मन से, दिल से भगवान को अगर आप जो है प्रार्थना करोगे, उनको भगवान को सब अर्पण करोगे, तो उसका आउटकम क्या होगा? उसका मतलब जैसे यहाँ पर लड़के और लड़की का आउटकम क्या होगा? उनकी मैरिज हो गई, इनके बच्चे हो गए, बच्चों को मतलब उनको आगे मतलब बढ़ा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो ठीक इसी तरह जब अगर हमारे साथ में भगवान का पहले जो है संबंध स्थापित हो गया, उसके बाद में हम लोगों ने अभिधेय किया, यानी हमने भगवान को अर्पण किए, बहुत सारी चीजें अपने आप को भगवान को अर्पण कर दिया, तो उसका आउटकम क्या हो गया? तो वहां से आपको भगवान के जो प्रयोजन यानी फ्रूट्स में आपको क्या मिलेगा? तो भगवान से आपको प्रेम मिलेगा। तो वो प्रेम मिलेगा, उसके बाद में आपको संतुष्टि मिलेगी, उसके बाद में आपकी जो भक्ति है उसको नरिशमेंट मिलेगी, यानी आपको भक्ति को जो है एक शक्ति मिलेगी ताकि आपकी भक्ति और आगे अग्रसर बन सके, तो नरिशमेंट मिलेगी। और उसके बाद में आपको क्लैरिटी मिलेगी, यानी आपको एक क्लैरिटी कैसे मिलेगी? यानी कौन सी चीज मेरे जीवन के अंदर उपयुक्त है, कौन सी चीज मेरे जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो मुझे रखनी है, जो मेरे जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मुझे निकालना है। तो क्लैरिटी मिल जाएगी, यानी एकदम स्पष्टता मिल जाएगी आपको कि आपको क्या करना है। तो ये जो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हरे कृष्ण। होप आई एम क्लियर। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। हरे कृष्णा। चलो, किसी का कोई कमेंट नहीं है तो फिर हम लोग का नरसिंह आरती ले लेते हैं।